आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इससे पहले पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें मुसलमानों की तादाद नहीं के बराबर थी। हालांकि अब उनकी बाकी बची सीटों पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों को कितना टिकट देती है देखने वाली बात होती। फहरिस्त में रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी और उनके कुनबे को मिली सीटों पर जहां अपोजिशन कुनबा परस्ती का इल्जाम लगा रहा है, वहीं पार्टी लीडर हनुमंत राव ने ओबीसी और दलितों को टिकट देने की अपील की है। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस की टीडीपी, बायां महा समेत कुछ छोटी पार्टियों से इत्तेहाद है, जिसके लिए उन्हें भी कुछ सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं, जिसमें टीडीपी को 11 और बायां महास के लिए 3 सीटें देने की खबर है। Definitely, they go our seats 119 seats. Out of 119, we are contesting only 95, right? Remaining, we have given alliance party like TDP, CPI, and also TJS. So everybody will be united. We can fight, and definitely, people are fed up with KCR because he has given a lot of false promises. So that's why people in favor of Congress and Mahakutami, everybody was, we don't want to, our vote should be divided. So that's why we became one Mahakutami. At the same time, in future also, all secular forces will come in one platform. Definitely, we can give a lesson to the BJP. That is our idea. Our population-wise, 54%. So I am appealing to the High Command, you give more seats. Only 13 is not sufficient. Remaining 18 was left. So in the 18, definitely we'll give more seats. Then every OBC people can happy, and we are in majority. Our vote is more important. So I am appealing again and again, give more seats for OBC. Congress party is a dynastic party. It actually is wearing a facade of democracy. It has nothing called democracy, neither in spirit or the letter of Congress party's way of organizing things. Not only that they have set a role model for the regional parties to become dynastic, they also have a microcosm in every state. And every state unit of Congress party is a replica of the Gandhi family or the Nehru family in the center. So there is no big surprises when you see how the tickets are distributed in Congress party in Telangana unit. Now you see the president of the party in Telangana unit, he and his wife both get the tickets. Now there are 2 brothers in Nalgonda districts, Komat Reddy brothers, both of them get tickets from the same family. So it is a family affair in Congress, and I think people of India has to come to realization that this party is purely a facade, and Rahul Gandhi goes around lecturing people everywhere in the country as to how truthful they are, but it's just plain lie that what he speaks and what he does are 2 different things. See, Uttam Kumar Reddy and his wife has got a seat. If that is the allegation, both of them are sitting MLAs. It is not that, one is not a sitting MLA, still somebody has been deprived. Here there is no question of any deprivation. First of all, before, you told me that BJP has alleged this. BJP, they are a very small party, like a fragment in the state. They should mind their own business. First of all, you set up your house right and then allege or, talk about other houses right. Here in our party, we are the most democratic party, unlike your dictatorial party. Here only, in your party, only Shah and Modi are the only big bosses. Here, every small Karyakarta also is a very important person. Even Rahul Gandhi also is an important person. Unlike your party, we have a lot of democracy. In the country, this country is the biggest democratic country in the world, and in the whole world, our party is the most democratic party. There is no question of any nepotism. और फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर के अपोजिशन कारगुजार सदर चंद्रशेखर राव पर निशाना साध रहा है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि गैर ममालिक में रह रहे लोग भी यहां पर वोट डालते हैं, जबकि इंतजामिया सब कुछ जानते हुए भी तमाशबीन बनी हुई है। केसीआर पर दबाव का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अंदरूनी इत्तेहाद की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते और इस मामले की इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई। अकेले हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में
3 से 4 लाख फर्जी वोट होने का दावा किया गया है। मौजूदा वोटर लिस्ट में हजारों मर चुके लोगों के नाम नहीं काटे जाने का भी मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि इन नामों का गलत इस्तेमाल करने की तैयारियां चल रही हैं। मुसलसिल 3 महीने से हम इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर राजत कुमार से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल ऑफिसर दाना कुमार से भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मोर देन 50,000 बोकस नॉन एग्जिस्टिंग गोस्ट वोटर्स है और उसकी तहकीक करो। पूरे रिप्रेजेंटेशंस के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर फिर वैसी बोकस वोट्स है और ये बोकस वोट पॉलिटिकल माफिया की जानिब से रिगिंग करके इलेक्शन किया जाता है हैदराबाद में। हाई कोर्ट हैदराबाद में जो हमारी पिटीशन दाखिल हुई वो इस मामले में था कि वोटर आईडी डिलीट हुई तो वापस आके आप उसमें फिर नया वोटर की तरह हमको शामिल कर दे। वो इस बारे में पूरा नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि डिलीट जो हुआ तो उसकी पेपर वर्क कहाँ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। और हमारी जो पिटीशन गई उस पे अब तक हियरिंग भी नहीं हुई। हालांकि हम इम्प्लीड हुए जो मरी शशिधर रेड्डी की पिटीशन में है, लेकिन हमारी अब तक सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मरी शशिधर रेड्डी की जो पिटीशन है उसमें प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग के बारे में बिल्कुल उसके बारे में नहीं है, उसकी जिक्र नहीं है, बल्कि हमारी पिटीशन सिर्फ उसी मुद्दे पे हम चलाए। ये केस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच पे अभी चल रहा है। हाई कोर्ट ये बात बोली इलेक्शन कमीशन को कि मैं ये केस मॉनिटर करूँगा, क्योंकि जो भी पिटिशनर है ये लोग लाके इतने वैलिड प्रूफ कोर्ट के सामने डाले, जैसा डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, डेड वोट, माइग्रेटेड वोट, NRI वोट्स, हिंदुओं के घरों के ऊपर मुसलमानों के वोट, और जो घर का नंबर नहीं है उस पे ओल्ड हाउस, कोई भी आप अपार्टमेंट का नाम देते जैसा शाह टावर्स, मुमताज़ टावर्स, रफ़ीक मंजिल, वहाँ पे फ्लैट नंबर्स है 102, 504, 601। और सबसे बड़ी चीज़ जो कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पूछी कि घरा अवेलेबल नहीं है। अपने इश्तियालंगेज बयानात को लेकर सुर्खियों का मरकज बने रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पूरे फॉर्म में है और सामने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का माहौल हो तो फिर क्या कहने। हालांकि पूरा अपोजिशन ओवैसी बरादरान पर बीजेपी से साजबाज का इल्जाम लगा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में इलेक्शन में कहा कांग्रेस हिंदुइज्म के साथ है। कैसे लाएंगे ऑर्डिनेंस? लाइए ना ऑर्डिनेंस, चलिए लाके बताइए ऑर्डिनेंस, चलिए। ये क्या बच्चों का खेल है? इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि हम तेलंगाना में 1 लाख गाय बांटेंगे। मेरा पहला सवाल बीजेपी से, आप मेरे को भी देंगे नहीं देंगे? AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का अंदाज ये तो सिर्फ एक नमूना है। हर मुतनाज़ा मुद्दे पर बेबाक राय रखना और मौजू हिंदू मुस्लिम हो तो फिर क्या कहने। खुद को मुसलमानों का लीडर साबित करने में लगे ओवैसी के इन बयानात से आखिर कौम को क्या हासिल हो पाया। हालांकि उनकी बातें सबसे ज्यादा रास आती हैं तो बीजेपी को। इंतखाबी बिगुल बजते ही हैदराबाद पहुंचे अमित शाह ने मजलिस के सफाई की क्या बात कही कि ओवैसी ने इसे मुसलमानों से जोड़ लिया। हालांकि सभी मज़ाहिब के रहनुमा उनके ऐसे बयानात को खारिज करते नजर आए। अमित शाह बोले मजलिस मुक्त, आप मजलिस मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते हैं। बीजेपी हो या वैसी हो, ये 20-20 आपस में खेलते रहते हैं दोनों, और हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। अब गरुद अवैसी हो के असदुद्दीन अवैसी हो, उनकी बातों में एक चुभन होती है और उससे लोगों की फीलिंग खराब होती है और फिर उसका जो रिएक्शन आता है वो उससे ज़्यादा खराब आता है। जो जनता के मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जुमलेबाजी या एक दूसरे को चैलेंज करना या धमकी देना ये कोई अच्छा काम नहीं है।
और कतई तौर पर इस बात की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान मुसलमानों को अपना नेता चुन लें और हिंदू हिंदुओं को अपना नेता चुन लें। और मजहबी इशूज़ को मुद्दा बनाकर मुसलमानों या हिंदुओं की बात करके अगर क़यादत और पॉलिटिक्स की बात की जाएगी तो ये बेहतर बात नहीं है। मजहबी इशूज़ को लेकर मीडिया के मरकज बने रहने वाले ओवैसी कुछ दिनों से कांग्रेस से काफी नाराज हैं। हालांकि AIMIM के बरसों का साथ भूलकर कांग्रेस भी उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने से परहेज नहीं करती। अमित शाह और ओवैसी साहब की जुगलबंदी हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं। ये जुगलबंदी उन्हीं को मुबारक हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो फर्क डालना चाहते हैं। उनके बयान से मोदी जी को फायदा होता है, मोदी जी के बयान से उनको फायदा होता है। अमित शाह हो या ओवैसी हो, दोनों आपस में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। कहीं ना कहीं इमोशन अटैच होते हैं और भड़कने की बात होते हैं। हैदराबाद के आसपास और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो मुल्क का मुसलमान उन्हें कायद मानता नजर नहीं आता, जिसका नमूना गुज़िश्ता बिहार असेंबली इंतखाब हो या उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। हालांकि अब उनका अगला हदफ 2019 में बीजेपी के साथ साथ अपोजिशन के इत्तेहाद को भी बिखेरने तक जा पहुंचा है, जिसके लिए वो आंध्रा CM चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब गुजरात जल रहा था तब नायडू NDA की हिमायत क्यों कर रहे थे। हालांकि उनका कुंडा भी 2012 तक कांग्रेस का हामी रहा है। 2012 से पहले मुल्क में जितने भी फसाद हुए हों या सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 21% से घटकर 1% हो गई हो, उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इस दौरान बाबरी मस्जिद तक शहीद हो गई। लेकिन आज वो कांग्रेस के किसी मुमकिना इत्तेहाद को सियासी ड्रामा बता रहे हैं। जो मुसलमानों को अपने आप को मुसलमानों का नेता कहता है और मुसलमानों की भलाई के लिए काम करने की बात करता है, वो दुख की बात है कि उस ओवैसी को जानना चाहिए कि इन हरकतों से आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं और लोग आप पर तोहमत लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हो। कुछ मिनट के लिए पुलिस हटाने का बयान हो या भारत माँ के नारे पर मचा हंगामा, मुस्लिम इलाकों के ATM में पैसे न होने वाला बयान हो या 3 तलाक के बाद मोदी हुकूमत को मंदिर मामले पर ऑर्डिनेंस लाने का चैलेंज, इनसे मुस्लिम कम्युनिटी को क्या हासिल हुआ? नफरत, टकराव या फिर कोई कामयाबी? अलबत्ता परेशानी में घिर रही हुकूमतों को मजहबी हवाओं ने राहत देने का ही काम किया है। ऐसे बयानात के लिए अपोजिशन हमेशा ओवैसी पर बीजेपी से साजबाज का इल्जाम लगाती है, जबकि AIMIM इसे अपोजिशन की बौखलाहट बताती रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि असम के बदरुद्दीन अजमल हो या कश्मीर में अपनी जमात बनाकर सियासत करने वाले मुस्लिम लीडरान, इनमें से बीजेपी ओवैसी को ही क्यों टारगेट करती है? हैदराबाद पहुंचे बीजेपी सदर ने हुक्मरान जमात TRS और अपोजिशन जमात कांग्रेस से पहले महज 7 MLA वाली जमात AIMIM को ही मुद्दा बनाया। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। इधर शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बहाने अब इस्लाम पर भी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कोडगू में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की मुखालफत में एक मुबैना सहाफी ने मजहब मुखालिफ बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। खुद को सहाफी बताने वाला संतोष थमैया टीपू की मुखालफत में आखिरी पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर बैठा। इस दौरान उसने मोहम्मद साहब के उसूलों को भी गलत बताने की गुस्ताखी कर डाली। हालांकि नाराज मुस्लिम तबके की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई। कांग्रेस इसके लिए RSS की नफरत भरी फिक्र को जिम्मेदार बता रही है। Gabon intentionally tries to malign a particular community and to foment unrest and create disturbance. I think as per law action has to be taken. The RSS they have very selective memories. They are masters of disinformation. They are the worst perpetrators of a right to freedom, because they want a different kind of country. They want one nation, one religion, one language, one culture, and to follow one leader. That is not India. इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जयंती से इस्लाम का लेना देना कोई नहीं है, मुसलमानों का लेना देना कोई नहीं। एक हुकूमत का इक़दाम था, हुकूमत शुरू की। अब हुकूमत जवाब दे कि क्यों शुरू की, किस लिए शुरू की। मुझे मुसलमानों के
के जज्बात से जुड़ा हुआ मसला बनाना नहीं चाहिए, और जो लोग भी एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। इधर वीएचपी संतोष के बचाव में उतर आई है। पार्टी का कहना है कि सहाफी ने टीपू सुल्तान को हिंदू तबके का कातिल जरूर बताया, लेकिन उसने मोहम्मद साहब पर कोई तबसरा नहीं किया है। वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ भी नहीं कहा वो, लेकिन वो टिप्पू सुल्तान अत्याचारी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से कह रहा हूँ, वो अत्याचारी है, मतांधरी है। उसके लिए बारे में कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में वो कुछ भी नहीं कहा। कर्नाटक में अक्सर टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करने की कोशिश होती रही है। हालांकि तारीख के सफात में उन्हें अजीम मुजाहिद आज़ादी और हिंदू मुस्लिम यकजहती का अलमबरदार माना जाता है। ऐसे में खुद को एक सहाफी बताने वाले शख्स पर ऐसे इल्जाम लगते हैं तो इस जमहूरियत के चौथे पिलर के लिए फिक्र की बात है। टीपू सुल्तान जयंती के मनाए जाने के बाद भी टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत जारी है। देखना होगा कि 2019 के आम चुनाव के आने तक क्या टीपू सुल्तान के नाम का सियासी गलियारों में इस्तेमाल होता रहेगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। इधर सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर के केरल सीएम ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और जिसको लेकर देर से उठाया गया सही कदम इसे बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अब 22 जनवरी को समाअत करेगा। हालांकि दोनों फरीक इसे अपने अपने हक में देख रहे हैं। इससे पहले अदालत उज़्मा ने साफ कर दिया कि नजर सानी अर्जी के बाद ही वो दीगर मामलों पर समाअत करेगी। उधर वुमेन एक्टिविस्ट की रियासती हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल कराने की अपील है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों को दाखिल होने का हुक्म देते हुए कहा था कि ये आराम से इस फरमान को नाफिज कराया जाए। सालों से चली आ रही इस रिवायत के खत्म होने की अकीदतमंद मुखालफत कर रहे हैं, जिसको बीजेपी समेत कई हिंदू तंजीमों की हिमायत हासिल है। Now the situation is the state government should come forward and try to have a consensus on the issue of Sabarimala. Supreme Court has decided to discuss this issue in the open court on 22nd of December. That means January. That means this case is not closed. When the Supreme Court, the apex court of the country, is decided to hear the case again as review petition in the open court, I feel that sense will prevail to the state government and they will try to arrive at a conclusion, consensus on this issue. We, the Congress party, wants proper peace and triangulity in Sabarimala so that crores and crores of pilgrims can go there and have darshan and go back. सबरीमाला ये ऐसा इशू जो पूरे साल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में इसे वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन आज जब लोगों ने इसके ऊपर बार बार रिवॉल्ट हो रहे थे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकारा है कि उनके पिटिशंस को स्वीकार लिया है और उस पर दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं कि क्या वहां पर औरतों को जाने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। आखिर क्यों पिटिशन दिया गया, क्यों आखिर औरतों के ऊपर ये बैन लगाने की लोग प्रेशर डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। जिस औरत की आप पूजा करते हैं, अभी दिवाली गई है, किसकी पूजा करी आपने? लक्ष्मी माँ की। लक्ष्मी माँ कौन है? एक औरत का स्वरूप है। आप जिनके ऊपर बैन लगा रहे हैं वो आप एक घर की लक्ष्मी हैं, आप उसी की पूजा करते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे वो नौ दुर्गे हो, और आज उसी के लिए आप बार बार पिटिशन कर रहे हैं कि वो मंदिर में ना जाए। क्या शिवा बिना पार्वती के आगे बढ़ेंगे आपके साथ? नहीं। गौरी है तो शिवा है, लक्ष्मी है तो नारायण है। तो क्यों आखिर इसके ऊपर इतना हम इशू और मुद्दा बना रहे हैं? क्यों आज पार्टीज इसको लेके आगे बार बार मीटिंग्स बुला रही हैं और पिटिशंस के लिए रिव्यू के लिए आज दबाव डाला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है जब तक रिव्यू नहीं होगा जनवरी तक लेडीज वहां पर दर्शन के लिए जा सकती हैं। We welcome this. The LDF government has called all parties for the meeting in related further discussions which are going on these days on Sabarimala issue.
as here everyone is known, this decision SC verdict has been given out by Supreme Court, and as well there were around 48 petitions against this into the Supreme Court, but still firmly Supreme Court said, like after the closing temple and on Jan 22nd, all the petitions will be reviewed and then look into the decision. When this is like that, we also appreciate the government of Kerala saying that till 20 we will support the Supreme Court judgment. We also stand with Supreme Court judgment, they say. We are very happy for that, and we also welcome the LDF calling all parties for the meeting. रिव्यू पिटिशन जो है जनवरी के 17 को रखी गई है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। बहुत सारे जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके रिलीजियस क्या सेंटिमेंट्स है उनको स्टडी करना पड़ेगा, और साथ में साथ जो हमारी जो संविधान है उसका भी सम्मान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही डिटेल सुनवाई होगी जनवरी में, तब काफ़ी अच्छा फैसला आ सकता है। मीनवाइल जो ऑल पार्टी मीट मुख्यमंत्री ने रखी है, तो वो तो मेरे ख्याल से इतने सब कन्फ्यूजन, केओस और इतने महिलाओं को बंदी होने के बाद ये हो गया है। इट इज़ बिट लेट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग अपोज करते थे, उनकी जो दादागिरी चलती थी, वो भी नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। तो ये दहशत का वातावरण इतना ज़्यादा हो गया, इसीलिए मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री को सारे बाकी अपोजिशन को बुलाना पड़ रहा है। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले की मुखालफत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी इसकी मुखालफत शुरू हो गई है। तिरुवनंतपुरम में जुटे हिंदू तंजीम के लीडरान ने नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि सदियों से चला आ रही रिवायत से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है और हुकूमत अकीदे पर चोट करना बंद करें। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों के दाखिले की इजाजत दे रखी है। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी खातून अंदर मंदिर में दाखिल नहीं हो पाई। इस मामले पर बीजेपी समेत सख्तगीर हिंदू तंजीमें लगातार अदालत के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, Pondicherry and Maharashtra, it will be lightened in a period of 41 days. The Mandala Magarabalaku time in all these South Indian devotees residents, and along with that we will light the lamp in the ashrams, temples in different states. We are looking for a result from the Supreme Court in this Sabarimala row. We are expecting, we will definitely throw away the blindness of the authorities by lighting this lamp, and they will definitely show the rituals of the Sabarimala, which will be last for several centuries. इधर हैदराबाद से एक हैरानकुन और दर्दनाक वाकया सामने आया है, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई कयामत करीब है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में एक बेटे ने अपने बाप को लोहे की रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बाप एम कृष्णा को रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए मिले थे, जिन्हें कातिल बेटा तरुण हत्याना चाहता था। और तरुण की 4 बहनें, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है और 2 की तैयारियां चल रही हैं। वालिद बेटियों की शादी के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते थे। इससे पहले भी तरुण ने अपने वालिद पर हमला किया था, जिसे गनीमत ये रही कि उसकी जान जाने से बच गई थी और रिश्तेदारों ने मामला सुलझाकर रफा दफा कर दिया था। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।